Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, how are you and how are your family members? Brothers, as you know, today we will read exercise number 11. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो. Write the English translation of the following sentences in the place below. Brothers, before translating, we should read the rule and regulation of this sentence, past continuous tense, negative sentences. Dear students, a lot of time we have informed you that each and every sentence has 3 sentences. One of them is affirmative sentence, and second is negative sentence, and third is interrogative sentence. Before negative sentences, we have read affirmative sentences. Past continuous tense affirmative sentences. As you are seeing, लता घर जा रही थी, लता was going home, वो सो रहा था, he was sleeping, वे खेल रहे थे, they were playing, तुम पुस्तक बेच रहे थे, you were selling the book. Dear students, in these sentences, you will not find the negative word not, no, etc. So affirmative sentences, the sentence tells us about the positive things, not negative. Musbat, you can say in Urdu language, musbat jumla. Affirmative sentences, musbat jumle. Negative, manfi jumle. Interrogative sentences, sawaliya jumle. So we have read affirmative sentences, past continuous tense affirmative sentences, the rule and regulation of these sentences we have read, and also we have known about the rule and regulation of past continuous tense negative sentences. Negative sentences tells us negative things. It means you find in the sentences not. Model sentences, see here, लता घर नहीं जा रही थी. लता was not going home. वो नहीं सो रहा था. He was not sleeping. वे नहीं खेल रहे थे. They were not playing. तुम पुस्तक नहीं बेच रहे थे. You are not selling the book. Dear students, pay attention. You will find here not. In these sentences, Lata was not going home. Not. You are seeing here not. So these sentences are negative sentences. And as you know, we have read also that in which place we will use the word not in negative sentences. Dear students, we have known the rule and regulation about it. The rules are in box. अनुवाद के नियम, the rule of the translation. Number 1, past continuous tense के निषेधात्मक I mean negative
वाक्यों का अनुवाद करते समय वाज या वर और इंग लगी हुई क्रिया की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट लगाओ। उदाहरण 1 से 4 देखो। वाज या वर का प्रयोग 7वें पाठ में दिए हुए नियम के अनुसार करो। स्टूडेंट्स, द राइटर टेलिंग अस द रूल ऑफ दीज नेगेटिव सेंटेंसेस। He says that past continuous tense negative sentences, while translating, we should use not after the subject and after the helping verb. We should use not after helping verb before main verb. You are seeing here, लता घर नहीं जा रही थी. Lata was not going home. So not is used here after helping verb and before main verb. So it is the rule and regulation. अजीज तलबा, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं. नेगेटिव आप समझ ही रहे हैं, हिंदी में निषेधात्मक कहते हैं निषेधात्मक जुमले को. उर्दू में मनफी जुमले को कहते हैं. तो ये कह रहे हैं कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कह रहे हैं कि अगर हमारा जुमला पास्ट हो और कंटिन्यूअस टेंस हो तो हम ऐसी सूरत में नॉट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे. तो इस बॉक्स में जो नियम है बताए गए हिंदी में, इसमें यह कहा गया है कि नॉट का इस्तेमाल वाज या वर के बाद करेंगे और आईएनजी लगी हुई क्रिया से पहले करेंगे और लास्ट में है ऑब्जेक्ट वगैरह लेकर आएंगे. जैसे आप इन्हें यहां देखा, लता घर नहीं जा रही थी, लता वाज नॉट गोइंग होम. तो यहां पे वाज के बाद नॉट का इस्तेमाल. इसी तरीके से वो नहीं सो रहा था, ही वाज नॉट स्लीपिंग. यहां नॉट का इस्तेमाल वाज के बाद मेन वर्ब से पहले. यानी कि हर जगह आप नॉट का इस्तेमाल यहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव में पाएंगे कि नॉट का इस्तेमाल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है. अजीज तलबा, अब आइए इसकी रोशनी में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11 का तर्जुमा हिंदी से इंग्लिश में करेंगे. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो. राइट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लेस गिवन बिलो. तुम भाग नहीं रहे थे. चलिए इंग्लिश बनाइए इसकी. तुम भाग नहीं रहे थे. हाँ, बहुत अच्छे. यू वर नॉट रनिंग. तुम नहीं भाग रहे थे. चलिए, वे नहीं नहा रहे थे. हाँ, बहुत अच्छे. दे वर नॉट बाथिंग या दे वर नॉट टेकिंग द बाथ. ठीक है. तुम मैदान में नहीं खेल रहे थे. चलिए, फील्ड है, फाइल नहीं. बहुत अच्छे. यू आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड. संजीव नहीं रो रहा था. बहुत अच्छे. संजीव वॉज नॉट वीपिंग. लड़के शोर नहीं मचा रहे थे. बहुत अच्छे. द बॉयज वर नॉट मेकिंग नॉइज. सीता नहीं सो रही थी. सीता वॉज नॉट स्लीपिंग. तुम खाना नहीं खा रहे थे. यू आर नॉट ईटिंग द फूड. बहुत अच्छे. वो चाय नहीं पी रहा था. टी. ही वॉज नॉट टेकिंग टी. बहुत अच्छे. अब यहां इसी कायदे के तहत और उसी एक्सरसाइज के तहत
ये इंग्लिश एक्सरसाइज है, इसकी हिंदी बनानी है। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। राइट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लेस गिवन बिलो। तर्जुमा कीजिए। राम वॉज नॉट रनिंग, बहुत अच्छे, राम नहीं दौड़ रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग, सविता वॉज नॉट रीडिंग, बहुत अच्छे, सविता नहीं पढ़ रही थी। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, बहुत अच्छे, वो दूध नहीं पी रहा था। दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, बहुत अच्छे, वे शोर नहीं मचा रहे थे। अब ये प्लेइंग खेलना, ड्रिंकिंग पीना, नॉइज शोर, ये मुकम्मल हुआ। कल हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अजीज तलबा आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।